Hello friends, today we will discuss about the all equations of the chapter 9 ray optics. Then the first equation for the mirror, there is a relation between radius of curvature and focal length r is equal to 2f. We can say this is for mirror. Otherwise we can say focal length is half of the radius of curvature. Then one more equation regarding with the mirror equation, that is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, and for the magnification for the mirror is minus v by u. This equation, all equation can be used as well as concave mirror and convex mirror. And यहाँ पर जब भी हम कैलकुलेशन करें, we have to use साइन कन्वेंशन, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ जो भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमें वैल्यू प्लेस करनी है. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है उसके साइन कन्वेंशन कभी नहीं लगाते हैं. मतलब if our interest to calculate the image distance, then according to the sign convention f positive negative and u positive negative रखो, v का आंसर हमें ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा. बाय द सेम वे अगर हमें मैग्निफिकेशन चाहिए तब v पॉजिटिव नेगेटिव रखो, हमें मैग्निफिकेशन मिलेगा. if answer of the magnification is negative, then we can say type of the image is real and inverted. और अगर हमें मैग्निफिकेशन प्लस मिला, then we can say type of the image is virtual and erect. After the mirror, there is a case of refraction. The case of refraction, first equation is a Snell's law. We can say theta 1 sin I is equal to theta 2 sin r, and from this we can say that whenever the ray enters from rarer to denser medium, it bends towards the normal, and whenever ray enters from denser to rarer medium, it bends away from the normal. तो यही इक्वेशन से हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड रिगार्डिंग टू द रिफ्रैक्शन, ऑलरेडी we have derived the relation between real depth and apparent depth, that we can say hi upon ho is equal to eta as a observer and eta as a object. मतलब ऑब्जर्वर जहां पर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज न्यूमरेटर में होगा, ऑब्जेक्ट जहां पर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज डिनोमिनेटर में मिलेगा. दैट मींस इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, तब हमें hi जो है वो ho से कम मिलेगा. hi हाइट ऑफ द इमेज, ho हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, आंसर लेस देन 1 होगा. Therefore, we can say hi less than ho. If observer is in denser medium, तब ये जो आंसर है वो 1 से ग्रेटर होगा, तो यूज सकते हैं हम hi greater than ho. So this is also case of the refraction. एक और चीज हमें रिफ्रैक्शन से रिलेटेड मिली है, lateral shift. Then equation for the lateral shift, we can say x is equal to t sin theta 1 minus theta 2 upon cos theta 2. अब इसी में अगर हम सोचेंगे lateral shift but normal lateral shift, normal lateral shift in the sense angle of incidence is very small. In case of small angle of incidence, this one angle of refraction also small होगा. तब ये वैल्यू जो है बोल सकते हैं sin थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा. तब
थियरी में डिस्कशन कर रखा है कि फॉर द नॉर्मल लेटरल शिफ्ट x इज इक्वल टू t θ1 minus θ2. Otherwise, one more equation. If we common up θ1, therefore d θ1 1 minus θ2 upon θ1, and in case of refractive index 1 minus θ1 upon θ2. All are the equation for the normal lateral shift. Now, then after there is a case of total internal reflection. In case of total internal reflection, we have the formula for the critical angle. That is sin c is equal to θ1 upon θ2. θ1 rarer or θ2 refractive index of denser medium. Always denser medium का refractive index in case of total internal reflection denominator में आएगा. And just remember the condition for the total internal reflection. The two conditions for the total internal reflection. First, the ray must be enter from denser medium to rarer medium. And another, the angle of incidence must be greater than critical angle. तब जो भी मीडियम है सभी का क्रिटिकल एंगल अलग अलग होगा और उस हिसाब से हमें इक्वेशन मिली sin c is equal to θ1 upon θ2. अब उसी रिफ्रैक्शन के केस में आगे चले. देन देयर इज अ केस ऑफ लेंस. लेकिन लेंस में हमने उसको पार्ट में डिवाइड किया है कि ऐसा फॉर द वन कर्व सरफेस और वन कर्व सरफेस भी ऐसा कि व्हेनेवर रे एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मतलब एयर टू द लेंस और फिर लेंस में से बाहर निकले तो बोलेंगे डेंसर टू रेयर. तब यहां पर बोलेंगे कि फॉर द स्फेरिकल कर्व सरफेस में फ्रॉम रेयर टू डेंसर कि फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. तो फॉर वन कर्व सरफेस की इक्वेशन माइनस θ1 upon u θ2 upon v is equal to θ2 minus θ1 upon θ1. जहां पर ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज न्यूमरेटर मतलब θ1 की जगह, जहां पर इमेज के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे θ2. तो रेयर टू डेंसर मतलब ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इन डेंसर मीडियम. ऐसे ही अगर हम बोले कि फ्रॉम denser to rarer medium, तो denser to rarer medium मतलब image formed by the first curve surface acts like virtual object for second curve surface. तो अब ऑब्जेक्ट जो है denser में होगा और इमेज उसकी हमें फाइनल इमेज rarer में मिलेगी. तब इक्वेशन में θ1 θ2 हम चेंज कर देंगे मतलब θ2 by u plus θ1 upon v is equal to θ1 minus θ2 upon r. यहाँ पर आएगा रिफ्रैक्टिव रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऐसे r. तो यहाँ पर फ्रॉम डेंसर ऑब्जेक्ट जहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर में है तो θ2 रेयर में θ1. अब इसी का अगर हम कॉम्बिनेशन कर दे तो हमें मिलता है लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला इज 1 upon f is equal to θ2 minus θ1 upon θ1 1 upon r1 minus 1 upon r2. θ2 the refractive index of lens itself, θ1 in which medium lens is kept. अगर air में है तो 1 होगा, if lens is kept in water तो water का refractive index, अगर कोई दूसरे liquid में है तो θ1 is the refractive index of the medium in which lens is kept. Now r1 and r2 radii of curvature of both the sides of the lens. तब अगर हम सोचें कि for the convex lens तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तब r1 हम पॉजिटिव ही लेंगे और r2 साइड के कोडिक्लो साइन कन्वेंशन नेगेटिव कंसीडर करें. देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर आंसर हमें फोकल लेंथ का पॉजिटिव मिलेगा.
Therefore R1 R2 में कोई भी एक हमें पॉजिटिव और दूसरा हमें नेगेटिव लेना है. In case of convex lens R1 positive R2 negative. In case of concave lens R1 we will consider as a negative and R2 positive. तो वैसे ये नेगेटिव तो है और अगर ये नेगेटिव कंसीडर करें तो आंसर हमें फोकल लेंथ का नेगेटिव मिलेगा. ऐसे ही हमें मिलती है लेंस फॉर्मूला. The lens formula is 1 upon f is equal to 1 upon b minus 1 upon u, and there is a case of magnification for the lens m is equal to v by u. अब जैसे आपने मिरर के लिए बोला तो उसकी दो और इक्वेशंस है, ऐसे ही यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन की दो और इक्वेशंस मिलेगी. अब अगर हम सोचे कि देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से रिलेटेड बोलेंगे कि फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट फोकल लेंथ इज 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. जितने भी लेंस रखे हैं उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, फॉर द कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव यूज करना है. ऐसे ही अगर हम पावर सोचे तो पावर p is 1 upon f and p is equal to p1 plus p2. जितने भी लेंस है उसके लिए भी फॉर द कॉन्वेक्स लेंस पावर पॉजिटिव, फॉर द कॉन्केव लेंस पावर नेगेटिव, और उसका रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन मिलेगा हमें मल्टीप्लिकेशन से. तो जितने भी लेंस है उसका इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ये हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन केस ऑफ व्हेनेवर लेंस इन कांटेक्ट. अब अगर बोलेंगे कि लेंस सेपरेटेड by distance d, मतलब अगर हम सोचें कि ये कोई भी एक लेंस, ये दूसरा लेंस और सेपरेशन d है जिसकी फोकल लेंथ f1 एंड f2, तब इसका रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगा 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2, और उसका पावर की फॉर्मूला होगी p1 plus p2 minus d p1 p2. इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन अगर ऐसे कांटेक्ट में लेंस है कि फिर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है, मैग्निफिकेशन तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन. तो मैग्निफिकेशन होगा m1 into m2. जैसे दो लेंस है तो m1 into m2 करके उसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा. तो इतनी जो भी फॉर्मूला हमने की अभी थोड़ी बाकी है, तो इसका अगर तुम्हें ऐसे एज ए रेफरेंस के लिए तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. चलो अब यहाँ से आगे करें, तब ऐसा बोलते हैं फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तो उससे पहले प्रिज्म. इन केस ऑफ प्रिज्म we can say the formula is I plus E is equal to A plus delta. I is angle of incidence, E angle of emergence, prism angle and deviation angle. इन चारों का ऐसे रिलेशन. Now refractive index of prism eta 2 by eta 1 is equal to sin A plus delta m by 2 upon sin a by 2, जिसमें एक फॉर्मूला a की कर देंगे हम कि a is equal to r1 plus r2. अब यहाँ पर ये मिनिमम डेविएशन है डेल्टा m. theta 2 is the refractive index of the prism and theta 1 is the medium in which prism is kept. prism एयर में है तो 1 आएगा, prism वाटर में रखा है तो नीचे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. अब यहाँ पर अगर हम डेल्टा m से रिलेटेड सोचे कि मिनिमम डेविएशन एंगल, तब अगर हम बोले कि प्रिज्म एंगल इज आल्सो वेरी स्मॉल फॉर द स्मॉलर प्रिज्म एंगल, तो पूरी वैल्यू स्मॉल होगी, तब डेल्टा हमें मिला है a into theta minus 1. थीटा विद रिस्पेक्ट टू एयर मिला, बाकी ऐसे थीटा 2 by थीटा 1. अब यहाँ से अगर हम कोई भी ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूला बोले तो डेल्टा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
proportional to the velocity because theta is equal to c by v and v is equal to nu lambda, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल and theta और अगर हम फोकल लेंथ सोचें they are inversely proportional then 1 upon f। तो यहाँ से अगर हम बोले कि for the different color having different refractive indices and different minimum deviation angle, जिसकी वेवलेंथ हायर डेविएशन एंगल कम और जिसकी वेवलेंथ लोअर डेविएशन एंगल ज्यादा। फॉर दैट वी कैन से रेड कलर की वेवलेंथ वायलेट कलर से सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई द deviation for the red color is lower than the violet color. That's why in case of dispersion we can get red color at top and violet color at bottom. It is the same case of rainbow. अब रेनबो के लिए अगर हम सोचें पर्टिकुलरली तब यही डिस्पर्जन में काम आएगा। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनबो, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो की कंडीशन तो बोला था हमने ट्वाइस रिफ्रैक्शन वंस रिफ्लेक्शन एंड उसमें ऑर्डर ऑफ द कलर एज रेड एट टॉप वायलेट एट बॉटम एंड वी कैन से सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो के लिए ट्वाइस रिफ्रैक्शन ट्वाइस रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ द कलर इज रिवर्स्ड, वायलेट एट टॉप रेड एट बॉटम। दोनों का ऐसे एंगुलर डिस्पर्जन सोचे तो प्राइमरी का हमने बोला था 2 डिग्री और सेकेंडरी रेनबो का 3 डिग्री, तो वो भी ऐसे रेफरेंस के लिए याद करना है। अब यहां से आगे करें तब हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ये भी याद करो कि प्रिज्म के केस में अगर मिनिमम डेविएशन है तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं R1 एंड R2, दैट्स व्हाई R हो जाएगा हमारे लिए a/2। नाउ देयर इज ए केस ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन है m इज इक्वल टू LD अपॉन FO इनटू FE। दिस इज फॉर इनफाइनाइट, अगर हमें इमेज लार्ज डिस्टेंस पर मिल रही है तब। अगर हम सोचे फॉर द फाइनाइट डिस्टेंस मतलब नॉर्मल विजन के लिए तो होता है L अपॉन FO 1 प्लस D अपॉन FE। दिस इज फॉर नियर पॉइंट, ये जो होगा वो हमने बोला फॉर नियर पॉइंट के लिए और ये इनफाइनाइट के लिए। दोनों हमें यूज करना है। अगर नियर पॉइंट दिया है तो 1 प्लस D अपॉन FE से करो, और लार्जर इंफिनिटी के लिए देन LD अपॉन FO इनटू FE। नाउ देन आफ्टर देयर इज ए टेलीस्कोप, वी कैन से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू FO अपॉन FE। अब उसी में अगर हम नियरर पॉइंट के लिए बोले तब फॉर्मूला है उसकी एक्चुअल फॉर्मूला इज FO इनटू FE। तो MO के रिलेटेड B अपॉन U, तो BO अपॉन UO और यहाँ पर 1 प्लस FE अपॉन D। टेलीस्कोप के केस में यहाँ पर उल्टा, तो BO अपॉन U और 1 प्लस FE अपॉन D इन केस ऑफ नियरर पॉइंट। इनफाइनाइट के लिए डायरेक्ट m इज इक्वल टू FO अपॉन FE। अब टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरा हमने बोला था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो हमें इन्वर्टेड इमेज देता है, उसको अगर हमें इरेक्ट करना है तो जो ऑब्जेक्टिव इमेज बना है वो इमेज और आई पीस के बीच में अगर एक्स्ट्रा लेंस की पेयर रखते हम तो हमें उसकी इमेज उसकी भी इन्वर्टेड मतलब इरेक्ट इमेज मिलेगी। दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ द इन्वर्टिंग लेंस है जो कहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इमेज जो बिटवीन इमेज मिलती है वो और आई पीस के बीच में एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ द लेंस रखे तो वो हो जाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। नाउ देयर इज टू प्रॉब्लम्स फॉर द टेरेस्ट्रियल या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब ऐसे 2 डिफेक्ट्स है।
वन बोलते हैं हम क्रोमेटिक एबेरेशन, अनदर बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन। तो दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कि जिसमें रिफ्रैक्शन से डिस्पर्जन होगा तब हमें मल्टी कलर इमेजेस मिलती है। तो मल्टी कलर इमेजेस मतलब इट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबेरेशन। तो क्रोमेटिक एबेरेशन मतलब हमें एक इमेज की जगह पर उसी ऑब्जेक्ट की हमें मल्टी कलर इमेजेस दिखती है, तो हमें जो भी हमें देखना है वो क्लियर नहीं होगा। फिर क्रोमेटिक एबेरेशन, तो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है उसको तुम एंगलाज करने जाओ तो थोड़ा ब्लर हो जाता है, उसकी जो कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा करने जाओ तो ब्लर हो जाएगा। तो पॉइंट लाइक इमेज जो है हमें ब्लर दिखता है, क्लियर नहीं दिखेगा, तब इसको बोलते हैं हम एज ए स्फेरिकल एबेरेशन। तो देयर इज अ टू डिफेक्ट्स फॉर द टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसीलिए एक नया टेलीस्कोप डेवलप हुआ, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। किसने बनाया? कैसेग्रेन ने। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कैसेग्रेन टेलीस्कोप, जिसमें मिरर्स यूज होते हैं। तो उसमें भी अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन ले तो दैट प्राइमरी मिरर एंड सेकेंडरी मिरर, तो साइज अगर सोचे तो साइज ऑफ प्राइमरी मिरर इज ग्रेटर देन सेकेंडरी मिरर। प्राइमरी कॉनकेव, सेकेंडरी कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ सोचे तो भी बोलेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ प्राइमरी मिरर इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंडरी मिरर। इसका भी ऐसे तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है एज ए रेफरेंस तो ले सकते